Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Today is Sunday, 17th of December. So I have it is a magazine discussion. It is about the Kurukshetra magazine, and we all know it is how important it is for any of the UPSC papers or otherwise for your competitive examination, especially regarding your rural areas and the development programs that is going on and all the schemes and measures the government is taking. So it becomes very important for you, especially for your GS paper 3. So we'll be dealing and let me read the headline to you. Aspirational district and block programs, a model for socio-economic transformation through grassroots empowerment. So before we jump into the editorial discussion, I would like to tell you and give you a brief introduction to the topic. So basically this particular editorial, it is regarding the EADP, which is your aspirational district programs. It was launched in the year 2018 so that it can provide good governance at grassroots level. So we all know what is good governance and what we refer at the grassroots level means starting from the village to the districts and the states and all the other areas. It will be covering good governance, the way in a particular area, particular country, particular state is ruled. It is the symptom of good governance. So this is the main crux of the topic, and I will be dealing in various subsections. Like first, we will be dealing with what is the whole topic regarding. Uh, this is the introduction. Like it is talking about very grassroots level. For example, we have taken Chamba as an example, which is in Himalayas, and how it is growing and developing. So this example has been taken to explain the program, plus how the ADPs have come to origin. Like in 2018, it was launched by the government, and how it is working, what are the programming and initiatives that are being taken, plus innovation and collaborative approaches means how we can make it more better, more competitive and comprehensive. On these parts we will be dealing with. Then critical success factors, what has this program been doing so far and how it is helpful in our rural areas particularly. And lastly, we can see the subnational transformations and the concluding point, which is regarding the same. Apart from that, we can also be seeing that how it is aspiring people as an Atmanirbhar person or villages especially. So let us begin reading the article. And before I jump, I would like to tell you that I will also be giving some difficult words, their vocab and meaning, and then you can even learn and go through it. The flagship scheme of the Government of India, such as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Mission Indradhanush, Swachh Bharat Mission, Poshan Abhiyan, Samagra Shiksha Abhiyan, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, among many others, formed a strong base that catalyzed the rapid transformation under the aspirational district programs and enabled a vision expansion of socio-economic well-being of Indian hinterland. So what is this paragraph talking about? It is talking about all the schemes of the government, from Sadak Yojana to Awas Yojana, Mission Indradhanush, Swachh Bharat Abhiyan, Poshan Yojana, Kisan Yojana, and every Yojana that is the government is doing for the rural sector, it means at the grassroots level. So it is talking about how these programs are strong catalyst. Strong catalyst, we all know what is a catalyst. What is the function of a catalyst? To boost up any reaction. So what is this program doing? This is boosting up our economy, boosting up of our economy, then the well-being, the standard of life in the rural areas, which is it is providing for the improvement and a rapid transformation. Transformation means growth. People are growing digitally, then mentally, and awareness generation of getting awareness about the surrounding and what the government is doing, what is the basic aim, and all of that. So transformation and catalyst, these programs are working under which, under aspirational district
programs which has been launched by the government, and it was also leading to socio-economic well-being. Socio-economic means social basis also there is well-being. Social society is also empowering, growing, getting employment opportunity, working with the government, and even creating a well society. Economically means it is generating revenue, finance, leading to economic growth and ultimately contributing to economic development of the country. Now, what is hinterland? We all This is one word we have come across. We can look at its meaning. So, hinterland basically is a land which is behind the city or coast. Behind hinterland, behind the city of the coast. Basically, it is referring to the rural area. It is behind the cities and all the areas and coastlines and all of that. So it is basically of the rural area. So social economic well-being of India's rural section. So let me read out. It is a long article, so I'll read out it entirely and then get to the meaning. Nested in Himalayas, Chamba is a northwestern district of Himachal Pradesh. Despite being blessed with natural beauty in abundance, the district faces many challenges due to the hilly terrain and harsh climatic conditions. With the population of around 5 lakh, of which 93% are rural, the district faces difficulties in providing cost effective basic services to far flung remote locations that have low population density. However, due to last 5 years, Chamba has taken giant strides in reaching the last mile and ensuring that no citizen is left behind. For example, the district administration has initiated the service of mobile medical units to provide basic medical services to remotest location. As a result, attention care for pregnant women has improved from 70 to 90%, and institutional deliveries have doubled from 40 to 80%. This has positively impacted the MMR IMR in the region. Through the convergence of schemes and CSR fund, Chamba has also set up community libraries to improve learning outcomes and micro irrigation facilities on mountain slope. Like Chamba, many districts have historically faced unique challenges either due to geographical location or their demographic composition. So, what is this paragraph talking about? So, it has taken the example of Chamba. Chamba, we all know, it is growing as it is a actually a rural area. Where it is in the Himalayas. What is the meaning of word nestled? Nestled means surrounded with or enclosed. So it is enclosed in Himalayas. It is a rural area which is slowly taking its space. It is growing, and all because of the different programs of the government. So here the example of Chamba district has been taken. So where it is in Himachal Pradesh. It is nested with Himalayas, surrounded by Himalayas. So it is blessed with natural beauty. Why we telling natural beauty? Because Himalayan is the greatest resource, greatest gift to them. These people, they're living and enjoying the nature there. So despite being blessed with the natural beauty, it is facing many challenges. Why? Because it is a hilly terrain. It is harsh, facing harsh climatic conditions. मतलब वहाँ पे आप देखिए हिली है और हमेशा ठंड रहता है. मौसम का वहाँ पे उन लोग को हर तरह का मौसम एक्सपीरियंस करने का नहीं मिलता है. हमारे जैसे गर्मी मॉडरेट हर तरह का नहीं एक्सपीरियंस कर सकते. हिली रीजन है तो वहाँ कई कई क्रॉप्स भी प्रोड्यूस नहीं हो सकते. तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं. उनका पॉपुलेशन क्या है? करीबन 5 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पर. कहाँ का? चंबा का. तो उसमें 93% मतलब मेजर लोग कौन है? रूरल पीपल है. और उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होता है इन कॉस्ट इफ़ेक्टिव बेसिक सर्विसेज. बेसिक सर्विसेज मतलब हिली रीजन है, हर तरह का सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते. मान लीजिए वहाँ पे क्योंकि वो रीजन थोड़ा स्लोपी है, वो स्नो से घिरा हुआ है, तो हर तरह का सर्विस प्रोवाइड करना वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है. प्लस इट इज़ अ रिमोट लोकेशन. रिमोट मतलब क्या होगा? रिमोट क्या होता है? ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है. हिली है, डिस्ट्रिक्ट है, रूरल एरिया, तो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है वो. And what is this word? Far flung means distant or remote, or we can also say widely spread or distributed. It is a remote location with low population density. So इसमें बोला जा रहा है in last 5 years क्या हुआ है? Chamba has taken
steps and even reached miles in ensuring that no citizens is left behind. अब इसका एग्जाम्पल कैसे दिया गया है कि कहाँ लास्ट 5 ईयर में चंबा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ क्या देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इनिशिएटेड द सर्विस ऑफ मोबाइल मेडिकल यूनिट. तो एग्जाम्पल क्या है वहाँ पे डेवलपमेंट का? मोबाइल मेडिकल यूनिट. यू कैन नोट डाउन दिस एग्जाम्पल. व्हाट हैज दिस डन? इट इज़ अ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी that can be provided to them in that remote location, in that underdeveloped location, जहाँ पे लोग हिली रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं रहने के लिए, वहाँ पे उनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा अपने मोबाइल में ही. तो इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ की जो प्रेग्नेंट वेमेन है यानी गर्भवती महिला, उन लोग को एंटीनेंटल केयर भी प्रोवाइड किया जाएगा. एंड व्हाट इज़ दिस टर्म? दिस इज अगेन अनदर new word for anyone who's coming across here. So antenatal means जो केयर आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स देते हैं प्रेगनेंसी के समय जो केयर मिलता है आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटेनेटल केयर. सो उसका कितना ग्रोथ हुआ? 70 to 90% ग्रोथ हुआ. प्लस डिलीवरी मतलब बच्चे का बर्थ को भी डबल किया गया, 40 to 80%. इसके अलावा इसमें एक अच्छा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा आपका? MMR एंड IMR. वी ऑल नो MMR इज़ योर maternity mortality rate and IMR is your infant mortality rate. infant means मतलब बच्चों का कितना जन्म हुआ है, और maternity mortality rate is your कि कितना डेथ हुआ है उस रीजन में, उसको एसेस किया गया है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है. इसके अलावा ये भी बोला गया है कि एक स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम्स एंड दिस फंड SRS फंड. व्हाट इज़ दिस फंड? सो ये एक ऐसा फंड है जहाँ जिसके अंडर NGOs को फाइनेंशियल या डिफरेंट सपोर्ट, NGOs को फाइनेंशियल या कोई भी तरह का ऐसा सपोर्ट दिया जाएगा कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा. कोई भी ऐसा फंड का फाइनेंशियल असिस्टेंस या दो भी जन लोगों को सपोर्ट NGOs को चाहिए वो मिलेगा. इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड. तो कौन क्योंकि दे रहा है? क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, याद रखिएगा. तो इसके अलावा यहाँ पे स्कीम्स और ये फंड्स का प्रोविज़न दिया गया है. इससे क्या होगा? यहाँ पे इस फंड की मदद से यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप हुआ है. इससे क्या होगा? लर्निंग आउटकम्स होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जो उस इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पढ़ नहीं सकते, वहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. इरिगेशन फैसिलिटी उन लोगों को मिला माउंटेन स्लोप्स में. इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि चंबा के अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ऐसा यूनिक चैलेंजेस फेस करना होता है अपने ही वे में, क्योंकि वो हिली रीजन में है तो उसका अपना यूनिक चैलेंज है. जो आपके कोस्ट लाइन में उनका अपना चैलेंजेस है, चाहे वो बाढ़ से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या फिर कोई आउट ऑफ फोर्सेस उन लोग को थ्रेट कर सकता है. तो ऐसे ऐसे अपना यूनिक चैलेंजेस होता है. तो या तो वो जोग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड होता है या डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन के बेसिस में हो सकता है ऐसे कुछ भी चैलेंज. Next, we should look at India is a multicultural nation of continental proportion blessed with immense diversity. This richness manifests across language and lifestyle. However, this variety also gives rise to socio-economic disparities among citizens. While some religions rapidly industrialize and urbanize, other continue to face backwardness. The reasons for disparity are varied. Different topographical terrain, lack of resource, historical justice, social marginalization and vulnerability, ineffective governance, and civil unrest, among others. To address these by ensuring equitable socio-economic growth across regions and sections of the societies, the Aspirational District Program was launched by Honorable Prime Minister in January 2018 with a focus on improving governance at grassroots level. सो व्हाट इज़ दिस पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट कि हमारा एक मल्टी कल्चरल नेशन है. वी ऑल नो यहाँ पे हर तरह के कल्चर के लोग हैं, हर तरह के डाइवर्सिटी देखा जा रहा है, हर लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग हैं. तो यहाँ मराठी है, बंगाली है, यहाँ पे आदिवासी है एंड ऑल दिस इज. तो एक इमेंसली डाइवर्स नेशन है हम लोग का. तो ये अपना लैंग्वेज और लाइफस्टाइल से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये मेंटली डाइवर्स है या मल्टी कल्चरल है. इसके अलावा यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है. सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब कि
कोई रीजन्स पे हम लोग देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रो सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ है, वो हम लोग देखते हैं कि वो लोग डेवलप्ड ज़्यादा है। और हमारे जैसे झारखंड वगैरह वो क्या होता है, थोड़े अंडर डेवलप्ड दिखते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यानी इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी है फाइनेंस के बेसिस पे भी। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज़ बन रहा है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस अर्बन एरियाज़ बन रहा है, लोग सिटीज़ में आ रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, रह रहे हैं। तो दीज आर एमर्जिंग। लेकिन बाकी बाकी एरियाज़ में हम अभी भी बैकवर्डनेस देख सकते हैं। ये कौन एरियाज़ है, ये रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम अभी भी बैकवर्डनेस देख सकते हैं। ओके, सो उसके अलावा ये रीज़न क्या हो सकता है, क्यों वो सब बैकवर्ड है? तो बहुत सारे इसके रीज़न्स है, एक रीज़न नहीं, हर डायमेंशन से है। तो उसमें बोलता है डिफरेंट टोपोग्राफिकल टेरेन, मतलब डिफरेंट, वो लोग जैसे चंबा है वो अपना हिली टेरेन में है, वैसे ही दूसरा एरियाज़ है जैसे मुंबई वगैरह है, वो सब इन कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे बाढ़ वाढ़ आएगा तो उन लोग को दिक्कत हो जाएगा। लैक ऑफ रिसोर्स, हिली रीजन में अगर चंबा देख लें तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं हो सकता है, हर जगह से तो वो माउंटेन से घिरे हुए हैं। हिस्टोरिकल इनजस्टिस, सोशल मार्जिनलाइजेशन, वल्नरेबिलिटी, इनइफेक्टिव गवर्नमेंट, सिविल अनरेस्ट और भी ऐसा ऐसा। तो ये सब रीजन है बैकवर्डनेस का, यू कैन नोट डाउन दिस। उसके अलावा बोल रहा है कि हम लोग को इसको इक्विटेबल, थोड़ा बहुत इक्वल करने की कोशिश करना चाहिए ताकि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, मतलब सोसाइटी का भी ग्रोथ हो सके और इकोनॉमिकली वाइज भी, मतलब फाइनेंस या पैसा रेवेन्यू जनरेट करने पे भी ग्रोथ हो सके। इसके अंदर इसीलिए ये प्रोग्राम आपका लाया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये इनजस्टिस या ये बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया कि सम एरियाज आर वेरी डेवलप्ड, सम आर नॉट डेवलप्ड, सम हैव फेस मेनी इनजस्टिसेस एंड सम आर डूइंग वेल। इस सब के लिए रूरल एरियाज या ग्रास रूट लेवल पे जनवरी 2018 में पीएम के द्वारा एडीपी लाया गया। सो लेट अस रीड नेक्स्ट। Origin and outcomes. ADP's origin lies in the PM vision of rapid transforming over 100 districts like Chamba to boost India's development. To achieve this, Niti Aayog formulated the aspirational district framework, which was an intricate and scientifically designed process to identify underdeveloped districts across states and UTs while also ensuring balanced regional representation. Extensive field visits provided contextual ground level data to supplement secondary statistics. The rigorous selection birthed one of the most ambitious decentralized development interventions by Government of India. So, what is this paragraph talking about? इसमें ये बताया गया मेन एम क्या आपका एडीपी का। एडीपी का क्या है, ये विजन है, पीएम का विजन था कि हम लोग देश को ट्रांसफॉर्म करें। 100 डिस्ट्रिक्ट का टारगेट लेके गया, जैसे चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसा टारगेट लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम लोग और डेवलपमेंट प्रोसेस को मेजर करेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया का टोटल डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। इंडिया के डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब विलेज डेवलप नहीं हो, सिटीज़ डेवलप नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं हो, छोटा छोटा एरिया नहीं डेवलप हो, तब तक होल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा ये बोला जा रहा है, ये जो एडीपी है, ये प्रोग्राम है, इसका फ्रेमवर्क कौन बनाया, फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका डिज़ाइन कौन किया इसको, या फिर इसको फॉर्मुलेट क्या किया, कौन किया कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, उस नीति आयोग द्वारा किया गया है। ये साइंटिफिकली डिज़ाइन प्रोसेस है। इससे क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंदर पता किया जाएगा कौन सा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, जो स्टेट्स या यूटीज़ के अंदर कौन सा अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है। और ऐसे ही जब ये पता किया जाएगा तो इंश्योर किया जाएगा कि क्या क्या हम लोग के लिए कर सकते हैं या बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, उन लोग को रिप्रेजेंटेशन ला सकते हैं। कहाँ रिप्रेजेंटेशन, इन पार्लियामेंट, इन इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा ये भी पता चला गया कि एक्सटेंसिव फील्ड विजिट, मतलब सरकार अगर या फिर जो हमारे मिनिस्टर्स अगर फील्ड वगैरह जाते हैं या जो भी रिपोर्टर्स वगैरह, तो उनको पता चलता है कि कितना ग्राउंड लेवल डिफ्रेंसिएशन है, कितना डेटा उन लोग को मिलता है, जहाँ से पता चलता है, ये स्टैटिस्टिक्स मिलता है कि अभी भी ग्रास रूट लेवल पे कुछ खास काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा देयर इज़ टर्म डिसेंट्रलाइज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड? सो वो जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो रूरल एरियाज़ होगा, वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल या सेवरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा रूल्ड होंगे, या वो लोकल ऑफिसर्स जो होंगे उनको देखेंगे,
उनके ऊपर अथॉरिटी जमाएंगे rather than a single body that is the government of India. तो ऐसे ही wholesome development हो सकता है. Then let us look forward. Over the subsequent 5 years, the program was implemented as a mass movement across 112 districts, led by significant grassroots improvement across socio-economic parameters by following the guiding principle of convergence, collaboration, and competition. On 30th September 2023, while addressing over 3,000 field functionaries gathered at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister observed that ADP will find its place in global letters in the top 10 list of all schemes of Government of India has implemented since independence. So देखिए इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जो 5 ईयर हो गया ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया हुआ, मतलब लागू किया हुआ 5 ईयर हो गया है. इससे क्या हुआ है कि जो 112 इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, 112 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट यानी थोड़ा थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे इम्प्रूवमेंट देखा गया है सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, मतलब सोसाइटी के बेसिस में. सोसाइटी का जब भी हम लोग मान रहे हैं बेसिस तो हम लोग समझेंगे इन फील्ड ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये सब होता है सोसाइटी बेसिस. और इकोनॉमिक बेसिस मतलब वहाँ पे फाइनेंस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लोग के पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक बेसिस. तो जब भी ये वो टर्म यूज़ होगा तो कीप दिस फैक्टर्स इन माइंड. तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुआ है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन. कन्वर्जेंस मतलब स्कीम्स को कन्वर्ज किया गया है, कोलैबोरेशन हुआ है स्कीम्स का, सारे स्कीम्स एक साथ लाए गए हैं, कंपटीशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और एसेस किया गया है कौन डिस्ट्रिक्ट कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्यों बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्या इंप्रूवमेंट और ज़रूरत है, ये सब हुआ है. इसके अलावा अभी के साल में सितंबर के समय क्या हुआ था कि पीएम मोदी दिल्ली में एड्रेस किए थे किसको, 3,000 फील्ड वर्कर्स को एड्रेस किए थे. एक प्रोग्राम था, इसको बोलते भारत मंडपम. वहाँ पे उन्होंने कहा था, पीएम ने कहा था कि ये जो प्रोग्राम है एडीपी, वो हम लोग के ग्लोबल लेवल पे अपना जगह रखने के लिए काबिल है, क्योंकि ये सारा जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है उनमें सबसे टॉप में आता है ये स्कीम्स. जितना भी इंडिपेंडेंस के बाद स्कीम आया उसके लिए ये सबसे बेहतरीन स्कीम आज तक का बना है, ऐसा हमारे पीएम का कहना है. लेट अस लुक नेक्स्ट. Innovation and collaborative approach. The ADP has pioneered a new model of competitive cooperative federalism centered on improved governance for accelerated and inclusive human development. So इसमें बोला जा रहा है कि जो ये प्रोग्राम है, पॉइनर्ड का मतलब क्या होगा. पॉइनर वी हैव ऑल हर्ड दिस वर्ड. Pioneer basically means one of the first. तो इसमें इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल जो कैसा, एक कम्पटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. रिमेंबर दिस टर्म, लुक इनटू दिस वर्ड कम्पटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस एंड पेपर ऑल्सो. सो लुक इनटू दिस वर्ड. कम्पटिटिव क्या है कि स्टेट्स का बात करें तो वहाँ पे कॉपरेशन, फेडरलिज्म वी टॉक इन बेस ऑफ वहाँ पे सेंटर भी हो और स्टेट्स भी हो. तो यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करने का या फिर एक हेल्दी मॉडल लेकर आता है कौन, ये एडीपी. और इसमें क्या है, इससे क्या होगा, गवर्नेंस एरिया बाय एरिया अच्छा होगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब ग्रोथ होगा वहाँ पे. प्लस इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट. इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलेंगे, सबको इंक्लूड करके चलेंगे, तो इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट होगा रादर दैन फोकसिंग ओनली ऑन हाई लेवल पीपल और फोकसिंग ऑन urban areas. Let us read next. It shifted the narrative from seasonal silo-driven scheme to regular outcome-based reviews. It fostered collaboration between center and states while promoting competitiveness among districts in 3 ways. Firstly, through Niti Aayog anchored the initiative centrally, states were the primary drivers. District collectors catalyzed grassroots participation to prepare integrated local action plans for addressing gaps. Secondly, the focus
shifted from inputs to outputs. Clear success metrics were defined for districts to catch up with state average and aspire to become the best in their state. Lastly, ADP leveraged technology extensively. So let us look till there. तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो मॉडल है, ये प्रोग्राम है, इसका एजेंडा शिफ्ट हुआ फ्रॉम शाइलो ड्रिवन स्कीम टू रेगुलर आउटकम बेस्ड रेवेन्यू. शाइलो फाइलो में हम लोग वी ऑल हैव लर्न दिस वर्ड शाइलो. हम बोलते हैं ना शाइलो मेंटालिटी. मतलब क्या होता है, एक अनविलिंगनेस होता है कि हम लोग कुछ शेयर ना करें, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ नॉलेज, वो होता है शाइलो आउटलुक. तो इस स्कीम से ये शिफ्ट किया गया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक शेयर प्रोसेस करेंगे ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सबको एसेस कर पाएंगे और उसी से हम लोग आउटकम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रिव्यूज़ पे फोकस करेंगे ताकि जो लोगों का प्रॉब्लम है वो अच्छे से गॉन थ्रू हो सके. इसके अलावा इट कोलैबोरेटेड सेंटर एंड स्टेट्स वाइल प्रमोटिंग कम्पिटिटिवनेस अमंग डिस्ट्रिक्ट्स इन 3 लेवल्स. तो क्या होगा, जब स्टेट्स और सेंटर्स दोनों सब मिलके कोलैबोरेट करेंगे, मतलब मिलजुल के काम करेंगे, तो एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच. और ये कंपटीशन 3 वेज में जनरेट होगा. फर्स्टली क्या है कि नीति आयोग वो एड्रेस करेंगे या एंकर करेंगे इस प्रोग्राम को. स्टेट्स क्या होगा, प्राइमरी ड्राइवर्स होगा, मतलब स्टेट्स विल गो थ्रू दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट कुड बी डन. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेशन जनरेट करेंगे कहाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में या एरियाज़ में जो भी है, और इस किसकी मदद से, लोकल एक्शन प्लान्स की जगह से, और जो भी गैप्स हैं, जो भी दिक्कत आ रहा है उसको फिल करेंगे. पहला थिंग ये है. ऐसे क्या होगा, कंपटीशन जनरेट होगा कहाँ, अमंग डिस्ट्रिक्ट्स. पहला लेवल ये हुआ. दूसरा लेवल में क्या होगा कि एक फोकस रखा जाएगा आउटकम में, रादर देन क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का प्रोग्राम्स जो भी है, हम लोग जो चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में कि ऐसा ग्रोथ हो, ऐसा हॉस्पिटल बने, ऐसा हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, ऐसा मेडिकल फैसिलिटी हो, तो आउटकम क्या हो रहा है, लोगों का रिव्यू क्या आ रहा है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे. और ऐसे ही वी विल कैच अप विद दी प्रोसेस कि हाँ हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. लास्टली क्या किया जाएगा कि इससे टेक्नोलॉजी को एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा. ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया जाएगा. लिवरेज मतलब टेक्नोलॉजी का ताकत का जो भी इस्तेमाल करना इस प्रोग्राम के थ्रू जाएगा. लेट अस रीड नेक्स्ट. अ रियल टाइम डैशबोर्ड tracked 49 socio-economic indicators on a monthly basis across 5 sectors including health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion and skill development basic facilities. This enabled continuous monitoring and healthy competition through database ranking. Thus, the program represents a unique model of evidence-based policy intervention through data-driven governance. तो इसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारे एरियाज़ 5 सेक्टर्स को माना गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे हम लोग को वर्क करना चाहिए ताकि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. वो 5 सेक्टर क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दिस स्टिल बेसिक फैसिलिटीज. 5 सेक्टर्स में हम लोग वर्क करेंगे तो जो सोशियो इकोनॉमिक गैप है वो रिड्यूस हो सकता है. इसके अलावा वी शुड ऑल्सो मॉनिटर, मतलब हम लोग को ध्यान देना चाहिए, उसमें नज़र रखना चाहिए कि हेल्दी कंपटीशन है कि नहीं, रैंकिंग्स दे रहे हैं कि नहीं, ताकि डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा से परफॉर्म करें. लोगों के बीच एक कम्पिटिटिवनेस जहाँ जनरेट होगा तो सब मेहनत करेंगे अपने को इम्प्रूव करने के लिए. उसके अलावा प्रोग्राम एक यूनिक मॉडल भी है. क्यों यूनिक मॉडल है, क्यों, क्योंकि वहाँ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है. यहाँ पे एविडेंस दिखाया जाएगा कि हाँ कि सच में एक प्रोग्राम वर्क कर रहा है, स्कीम वर्क कर रहा है, क्या वहाँ पे सच में रिजल्ट है, क्या लोग, क्योंकि यहाँ आउटकम और रिव्यू में फोकस किया जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं एविडेंस पे पॉलिसी है, डेटा ड्रिवन है. पता चलेगा कि कितना कितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, कितना डेमोक्रेसी, कितना पॉपुलेशन रेशियो एंड ऑल ऑफ दैट. सो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस वुड बी देयर. Next, building on the previous initiatives that have supported these regions with fund, the program's primary focus has been to build capacity at level of the district administration to ensure saturation of government service delivery to the last mile. It has focused on provision of basic services such as Pakka houses, all-weather roads, electricity, tap water connection, resilient health infrastructure, financial inclusion, provision of quality education and enabling skill development to support इनकम जनरेशन. तो आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव रहेगा या प्राइमरी फोकस क्या क्या रहेगा, ये सारे जो भी हम लोग पढ़े. नेक्स्ट,
The program has led to significant progress in multiple key performance indicators across districts and has had a major impact on India's progress in localizing sustainable development goals. Some indicators, such as household electric connections and individual toilets, have reached near saturation level across most ADs. The flagship scheme of the Government of India, such as Pradhan Mantri Sadak Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Mission Indradhanush, Swachh Bharat Abhiyan, Poshan Abhiyan, Shiksha Abhiyan, Kisan Samman Nidhi, among others, formed a strong base that catalyzed rapid transformation at the ATP and enabled a visible expansion of socio-economic well-being in India hinterland. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम एक और वे से हेल्पफुल है, एडवांटेजेस है, क्यों? क्योंकि वो लोकलाइज करता है SDG गोल्स को. हमारे SDG गोल्स वी हैव टू लुक व्हाट ऑल कम अंडर SDGs, और लोकलाइज करता है, मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी उसको इम्प्लीमेंट करने को हेल्प करता है. इसके अलावा बोला जा रहा है कि बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, इट हैज़ रीच फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एट डिफरेंट लेवल्स. तो ये बहुत अच्छा रहा है हमारे प्रोग्राम के बेसिस पे. इसके अलावा बोल रहा है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये क्या किया, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है, कैटलाइज किया गया है इस प्रोग्राम के थ्रू. और इससे हम लोग कह सकते हैं विजिबल एक्सपेंशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब और भी ज़्यादा हम लोग सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग दे सकते हैं. कहाँ? इंडियाज़ हिंटरलैंड, मतलब इंडियाज़ रूरल एरिया में हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, critical success factor. The core strategy of ADP is based on process re-engineering and innovation to improve grassroots governance. Some of the critical success factors include, तो इसमें बता रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम और सक्सेसफुल हो रहा है या हो सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव nomenclature. The selected districts are called aspirational instead of backward, as they aspire to first become the best of their state and thereafter in the country. The Prime Minister's vision has been to infuse a sense of positivity in the district administration and the people of these districts so that they can become an aspiration for the rest of the country. So here, what is the term meaning of nomenclature? मतलब असाइनिंग नेम टू एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, ह्यूमन्स को क्या नाम से भी जाना जाता है? होमोसैपियंस. तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन्स को हम लोग क्या नाम दे दिए? होमोसैपियंस. सो असाइनिंग नेम टू समथिंग. तो इधर बोला जा रहा है कि इस प्रोग्राम में रूरल एरियाज़ को बैकवर्ड एरियाज़ ना कहकर एस्पिरेशनल एरियाज़ कहा जा रहा है. क्यों? ये प्रोग्राम ADP है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ना कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इससे क्या होगा, ये दिखाएगा कि कैसे हम लोग एक अच्छा आउटलुक से देख रहे हैं उन लोग को पीछे उनको नीचा ना दिखा के एक एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इट इज़ एस्पायरिंग. एस्पायरिंग मतलब वो अपने आप को एक पोजिशन में लाने की कोशिश कर रहा है दोज दैट दे कैन बिकम बेस्ट इन द स्टेट. जब वो बेस्ट होने लगेंगे, अपने स्टेट में अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, फिर अल्टीमेटली कंट्री अच्छा परफॉर्म करने लगेगा. और जो PM का विजन है, उनका जो इच्छा है कि एक पॉजिटिविटी लाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों को इसका फ़ायदा हो, ये एक इंस्पिरेशन बन सकता है हमारे पूरे कंट्री के लिए. नेक्स्ट, theory of prioritization. The program adopts the theory of prioritization that identifies geography, sectors, and community. The ADs have been carefully selected using priority socio-economic indicators. Similarly, basic social services have been identified for all sectors of the society that can be saturated. सो वी ऑल नो प्रायोरिटी मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना. तो प्रोग्राम क्या होगा, एक इम्पोर्टेंस सेट करेगा कि ठीक है, पहले हम लोग को हेल्थ में फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर हम लोग सैनिटेशन में फोकस करेंगे, फिर हम लोग विमेन एजुकेशन में फोकस करेंगे. ऐसे वो अपना प्रायोरिटी सेट करते करते डेली टारगेट्स को अचीव करेगा. मान लीजिए हेल्थ का टारगेट ख़त्म हुआ, वहाँ टॉयलेट्स बिल्डअप हुआ या सैनिटेशन फैसिलिटी हुआ, फिर एजुकेशन हुआ, फिर धीरे धीरे इट कैन टेक इट्स फुल फॉर्म एंड देन फाइनली वी कैन सी कि कैसे सोशो इकोनॉमिक तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट या पूरा रूरल एरिया का डेवलपमेंट हुआ. Innovation in governance. Dynamic district administration with stable tenures have been an endeavor of the government to fast track progress
on the ground. The AD has adopted innovative solutions to tackle traditional challenges. Commitment for top leadership at all level has also been motivating factor in the progress. जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाता है ताकि चैलेंजेस को टैकल किया जा सके, और कमिटमेंट है कि हाँ प्रोग्राम को बहुत बेस्ट बनाना है, हम लोग उसको अच्छे लेवल पे, इन लोगों को ग्रास रूट लेवल से ऊपर लाना है, तो इट वुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर इन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम. Competitive and cooperative federalism. Robust monitoring and data driven governance has been a focal strategy under the program. The 49 socio-economic indicators are a mix of input, process, output, and outcome indicators that are relevant for achieving SDGs. The ADs are ranked periodically based on improvement made in the indicator, instilling a sense of healthy competition and benchmarking with more developed districts. सो या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोबस्ट, मतलब कुछ भी हेल्दी या स्ट्रॉन्ग. तो एक हेल्दी मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, डेटा होगा कि गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करिए, एरिया या डिस्ट्रिक्ट कैसा प्रोग्राम करे, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगा ताकि जो 49 सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसको अचीव किया जा सके. और वहाँ कैसे अचीव होगा, इनपुट कुछ अच्छा हम लोग प्लान करेंगे, प्रोसेस में डालेंगे, आउटपुट आएगा, आउटकम या रिव्यू आएगा, फाइनली SDG गोल्स को भी अचीव करेंगे. रैंकिंग देंगे डिस्ट्रिक्ट्स बाय डिस्ट्रिक्ट्स, लोगों का परफॉर्मेंस को या एरियाज़ को, या मेडिकल फैसिलिटी है कोई एरिया में तो रैंक करेंगे कौन ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है या फिर कैसे ग्रोथ हो रहा है. तो इससे क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा, फाइनली एक डेवलपमेंट मॉडल या डेवलप्ड मॉडल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स कैन कम in front of us. Next, horizontal coverage and collaboration. Collaboration between district departments to achieve common goals is encouraged. Convergence with civil societies, organization and development partners has also been an effective implementation strategy. तो इसमें बोला जा रहा है कि कन्वर्जेंस हो मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स साथ में आ सकते हैं, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स एक साथ आ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, वर्क दे कैन वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल्स. कॉमन गोल्स मतलब हम जानते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही प्रॉब्लम है, सारे रूरल एरियाज़ में, चाहे वो हेल्थ को, सैनिटेशन को, एजुकेशन को, तो ऐसे सारे इसको मिक्स करके हम लोग अचीव कर सकते हैं. और फाइनली इफ़ेक्टिवली प्रोग्राम को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट, वर्टिकल कोलैबोरेशन. दिस फोकस on collaboration between center, minister, state departments and district administrators. Senior level central officers have been appointed for every AD to mentor them and act as a bridge between administrative levels. तो इसमें बोला जा रहा है, तो what is the meaning of horizontal वर्टिकल कोलैबोरेशन मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट PM साथ में आए, स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट साथ में आए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट साथ में आए और फिर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर साथ में आए, फिर ही प्रोग्राम को एक पूरा सक्सेस मिल सकता है. इसके अलावा सीनियर लेवल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया ताकि प्रोग्राम को मेंटेन कर सके, मॉनिटर कर सके और देख सके, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एडमिनिस्टर कर सके. नेक्स्ट, peer learning and behavior change. The community of AD benefit from each other through sharing and benchmarking the best practices. Through interstate workshop, cross visits, and digital master classes, districts in similar geographies can learn from and replicate the success and innovation of well performing peer district in competitive spirit. तो इसमें बोल रहे peer learning क्या होता है, आप लोग बोलते सुनते होंगे टर्म पीयर प्रेशर या पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस में आ जाना, एक किसी के प्रभाव में आ जाना होता है पीयर. तो पीयर लर्निंग और बिहेवियर चेंजेस होगा कैसे, जब वहाँ पे कुछ तरह का प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन जनरेट किया जाएगा, वर्कशॉप से विज़िट किया जाएगा, उसके अलावा डिफरेंट क्लासेस होगा. तो ऐसे करके एक वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट या कम्पिटिटिव स्पिरिट जैसे ही लाया जाएगा तो वो लोग डेवलप करते रहेंगे. So let us read the concluding paragraph. Thus, ADs have enabled holistic improvement through optimal resource allocation, real-time monitoring, and capacity building of district administration. Even remote regions made strides, affirming that development is achievable if the collective community is strong. In its report of the program,
UNDP mentioned that ADP is very successful model of local area development. It is aligned the principle of leave no one behind, the vital core of the SDGs. It should serve as the best practice for several other countries where regional disparities in developed status persist for many reasons. तो देखिए ये मॉडल भी अप्रिशिएट किया गया किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा बहुत अप्रिशिएट किया गया और उनका ये स्टेटमेंट है कि ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है जिसका मतलब है यू हैव टू लीव नो वन बिहाइंड, सबको साथ लेके चलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। और एसडीजी गोल्स को भी अचीव करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस लाएंगे ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब एरिया बाय एरिया जो डिफरेंसेस हैं कि एरिया ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिला, इस एरिया को नहीं मिला, तो ये सब रीजनल छोटे छोटे डिस्पैरिटी को हटाया जाएगा। तो बहुत अच्छा बात है कि हमारे प्रोग्राम को इतना एप्रिसिएशन मिला। नेक्स्ट वी विल कम टू द कंक्लूडिंग पैराग्राफ हियर, how this program is an aspirational Atmanirbhar village. The transformation enabled ADP and early gains under ABP underscores that and empowered and inspired leadership, hyper local planning, outcome focused real monitoring, and optimal resource utilization to convergence can drive development. However, community involvement remains the bedrock as district witnessed dramatic improvement where people were not just beneficiaries but active agents of change. सबका प्रयास is as important as सबका विकास for the program's success. तो इसमें बोला जा रहा है कि एक सबका विकास होगा कब, जब सब प्रयास करेंगे। तो एडीपी अकेले नहीं चलेगा, और भी मॉडल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड, पीपल हैव टू कंट्रीब्यूट, द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल हैव टू कंट्रीब्यूट, दे हैव टू कन्वर्ज डिफरेंट schemes and programs, and then only improvement can be done at a greater level. Rapid and decentralized development enabled by ADP and ABP has led to strong foundation of for citizens' welfare and fulfillment of their growth needs. By reaching remote grassroots, these initiatives have unlocked the aspirations of all India to accomplish the vision and of the prosperous and inclusive nation. Mahatma Gandhi believed that the soul of India lies in its village. The journey of AD and blocks will culminate in aspirational and Atmanirbhar villages. It gives every Bharatiya hope that Viksit Bharat in 2047 is achievable reality. A socio-economically self-reliant village, Atmanirbhar Gaon, is foundation for achieving the vision of Amrit Kal. सो देखिए ये लाइन आपका पूरा क्रक्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि उसके विकसित भारत का मेंशन किया गया है। यू हैव टू लर्न व्हाट इज़ विकसित भारत, यू कैन इवन गेट एन ऐसे और अदर सच थिंग। तो ये 2047 तक का हमारा टारगेट है कि हम लोग विकसित करेंगे भारत को, कैसे करेंगे क्या है वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एडीपी और ये प्रोग्राम के द्वारा क्या होगा, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सारा गोल्स जो होगा रिमोट एरियाज तक पहुँचेगा। इसके अलावा हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। महात्मा गांधी बिलीव दैट द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज, इसलिए हम लोग विलेज को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये विलेजेस अगर ध्यान देंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारा देश आत्मनिर्भर, हमारा लोग आत्मनिर्भर, हमारे विलेजेस आत्मनिर्भर होंगे और सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर गाँव वाँव सब होगा, तब द विजन ऑफ द अमृत काल या विकसित भारत विजन कैन बी अचीव्ड। That's all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.